Vimlesh, Vimlesh, you there? Vimlesh, are you there? गुड मॉर्निंग सर। यस सर, कैसे हैं आप? Good morning, beta. How are you? Hello. यस सर, गुड मॉर्निंग सर। Good morning, Vimlesh. How are you, beta? आई एम फाइन सर, आप कैसे हैं सर? I'm good. Please make me the co-host so that I can share my screen. यस सर, यू आर पोस्ट नाउ। Okay, beta. Thank you. Has the expert joined? सर ही विल ज्वाइन एट 10 o'clock। आप Okay, okay. बहुत मिर्ची मिर्च क्या लाऊं फिर? लाइट नहीं है लाइट भी गई है। हाँ फिर बंद हो गई थी जब मैंने नहा ली थी। रात में तो चली गई थी, तो चलना होगा काम। Good morning, Dr. Chauhan. Good morning, sir. How are you? I'm fine. Yeah.
Good morning, sir. So basically, I'm ready. Whenever you say, I will start. I'll just give a brief introduction about yourself and then you can start, sir. Yes, sir. Sure. Thank you. So, good morning to all the participants. In this current session, we are extremely honored to have one of the leading academicians and researchers with us, that is Dr. Ajay Kumar Chauhan. Now, Dr. Ajay Kumar Chauhan is currently working as an independent consultant of quantitative methods. He is working as a visiting faculty with MDI, IMT, NMIMS, IAFT, NIT, etc. Earlier, for 8 years, he was associated with IMT Ghaziabad as a full-time faculty. He has done his MSc in mathematics, MBA in finance. He has also cleared the UGC NET exam and has done his PhD in finance. He has published 25 international research papers and has also authored 3 books. He's a well-known trainer of data science and analysis and has conducted more than 500 national and international training programs on topics like financial econometrics, time series analysis, machine learning using R and Orange, etc. He's also taught in Bulgaria and has done an advanced course in econometrics from Switzerland. His area of specialization includes quantitative methods, business statistics, quantitative finance, financial derivatives, financial risk management, and business analytics. So it's an extreme honor for us to have him as our guest speaker here for this current session. And I hope that all our participants can gain a lot out of his expertise, his experience over the years which he has gained. So now the platform is yours, sir. Okay. Good morning, everyone. The topic that I am taking today is data mining using a new software called Orange. So I am going to start a very new topic, and this topic is data mining with a new software. So let me share my screen, and I hope you can see the screen. Okay, so now you know that everybody is talking about the data science, data mining. So many softwares are coming in this for helping you. So one of the software that we are talking about is Orange, and this is the icon of the software, and it is open source. The biggest benefit of this software is that it is open source. It is freely downloadable, and actually it is working on the Python scripts. There are different Python scripts, and these Python scripts are represented by the icons. So you need not to remember all these scripts. You need not to write all the different codes. You just remember the icons. What is the objective of the icon? And by the help of these icons, you can use the analysis. You can do the analysis, and you can use the software. It is a very helpful software for the beginners and advanced level also. So let me explain. This is the logo of the software, and you can see that it is a fruit and fun. The theme behind this software is fruit and fun. You just fun. You can enjoy with data mining exercises. So yeah. So if you want to download the Orange, you have to go to the website of Orange, and just go to download Orange. Click on this button, and after that you can downloading will start,
And so these window will come in the meanwhile. So this is the latest version of the Orange is 3.26, and this is the latest version, the current version of Orange. And after that, you can see these pages will come, and this is the procedure. I agree, next. So I keep all the procedures in this slide so that you can download the software without any problem. Okay. Now after the download it, after you download the software, you can see this icon orange on the desktop. And if you can see this icon on the desktop, it means your software is ready for work. Your software is ready, and you can start the analysis part. And let's move to the slide number 2. So okay, yeah. Give me a minute. I just I'm coming. Vimnesh, are you able to hear anything? Hello. Hello. Vimnesh? So our speaker has muted himself. Yeah, that is the trouble. I'm not even able to unmute him. Sir, I'm not Yes, able to I'm see. calling. Not able to see. Somebody Yes, now is, Now visible. sir. I think somebody is muting me again and again. I don't know why.
No, sir. Anyone has not right to mute you because you are co-host now, Maybe and I am the host. maybe by mistake it is muted. Okay, okay. Please continue. So so let me think. Now everything is fine, and okay. So tell me, everything is visible or not? Can you see the front page of the software? So Yes, yes, nothing it is is, visible. Okay. Sure. So when you open the Orange software, the front pages look like this. When you open the software, the front page looks like this, and there are different icons you can see here. And this is the canvas where we can draw the charts. And if you scroll down, you can see different options, like all the options are belong to the data category. So if we move down, Excuse me, sir. Excuse me, sir. We are only seeing the blank PPT slide. okay, let me see what is the problem. Okay, Yes, now it is okay. good. So I hope you can see the different icons here. Yes, And yes. these different icons are representing the different scripts of the Python. But the biggest advantage is that we are not able to run these scripts, but we can run it with the help of the icons. So the first category is the data. In the second category is the visualization. This is the category. And the third category is the model. And we are having evaluate, unsupervised, and the time series, and the text mining, so and the education. Right. So these are the different options. These are the different icons you can see. And um, am I visible properly? Audible? Hello? yes, sir. Okay, actually some construction work is going on. I want to change the position. So give me a minute. Sure. नहीं फोन में और तू यहीं बैठा रहे
Yeah. So I think I just want to confirm whether I am visible, audible. So there's a time wastage of 5 minutes. So sorry for that. And now I'm going to continue. Just want to confirm whether it is visible or audible. And so this is the icon. There are different icons. So first of all, we have to go to the icon number 1, that is file. This file is representing the data. This file is representing the data, and first of all, we have to import the data. If we want to work on some data set, the first objective is to import the data set. So if you double click on it, just scroll down. Some of the data set are provided by the software, but if we want to work on our data set, so we can import and start working. Like for example, let me try to work with some data set. If I click on this folder, it means I can import the data set. Like, so let me see on which data set I want to work. These are the different data set I have. And one of the data set is Patanjali data. So just want to show this data set to you. Yeah. So when I click on the data set, I can see different variables in the file here. These are the different files. These are the different variables in the file. And if you can see, the one of the column is representing the type, and another column is representing the role. So in role, we are having two categories. One is the feature and second is the target. Feature variables and the target variable. So here we have to define that what actually we are going to predict. So the variable which we are going to predict is called target variable, and the variable which we are considering as an independent variable, that independent variable is known as feature. So feature variable and the target variable, these two types we have to define. I repeat, target variable is my dependent variable and the feature variable is my independent variable. Similarly, in the text data set, in the type column, in this column, we have 2 or 3 categories. Number one, the categorical variable. If any variable is categorical in nature, so you can write categorical variable. And if any variable is in numbers, you can write as a number variable, numeric. So here the software is very smart. Software will automatically identify whether the variable is categorical in nature or numeric in nature. And similarly, feature and target you need to define. Okay. Now, after defining the variable, we want to see the data set. First of all, we have to visualize the data set. So, so basically, in every icon, you can see the dotted curves. These dotted curves are known as the channels. Like for example, this file icon have only output channel. This file is not having any input channel. Like for example, I am connecting this channel. Yeah. So I am connecting this channel to the data table. Now you can see that the output channel and the input channel of data table are connected to each other. So these channels are very, very important in Orange. So if I click on the data file, I can see all the data file here. So you can see the data, and the shaded region is basically representing the target variable, and all other variables are considered as a feature variable. So in this data set, I defined honey as the target variable. So this is a target variable. Okay. So after the data table, so I again, and so you can arrange all the
data set in descending and ascending order. So you can arrange the data from here, and this data set is okay. So if I arrange, yeah, so we can arrange like this in descending and ascending order. And after that, I want to see more visualizations. And so let me try box plot. Box plot is one of the diagram which is very popular diagram nowadays, and you can see the different options like I'm showing you. So here I want to find out the sales of honey, let's say not honey, Chyawanprash, and this is the sales of the Chyawanprash, and I want to analyze the sales of the Chyawanprash according to the quarter. I want to know in which quarter the sales is high or in which quarter the sales is low. So you can see that this kind of diagram is coming, and we are having the minimum value, the maximum value, the median value, the minimum mean value, and the range of the value. So all the information I represented with the help of the figure graph. So this is one of the amazing feature of the software. And suppose I want to find out the month wise. So I want to see the sale of the key Chyawanprash according to the month. So now I can see the sales as per the month. So from this graph, I can find out in which year, in which month the sale is high, in which month the sale is low. So you can say the highest sale is 907. 907 is the maximum sales, and it happens in the month of December. I think this is the 12th month, December. Yeah, month is 12. So if we can see the graph like this, so we can see different graphs as per the categories. And even if I declare my year as category, so year is representing the numeric, I want to represent as a categorical, so that I can see the sales with respect to years. So let me check whether what graph I am. Yeah, year is coming here. So what is the figure? Yeah. So you can see that the sales of Chyawanprash was very low during the year of I think I started from 2013. So the sales of Chyawanprash was not increasing in the initial years, but after that it increases fast. So the sales are increasing from last 4 years. So this is the visualization of the data that we can make from the graph. And in this graph, there are many numbers you can see. This is the minimum value. The yellow is the median value. Blue is the mean value. And this is the quartile number 1. This is quartile number 2, like this. In the PPT also, I mentioned all these things. So let me show you. Yeah. So I will provide you this PPT. And in this PPT, I defined box plot. So here, this kind of chart we can make in the box plot. Mean, the dark blue line is the mean. The thin blue line is the standard deviation. And the values of the first, 25th and 75th position are represented by like this. And the median is represented by the yellow line like that. So in this way, we can plot the different charts. Now I'm showing you some more charts we can make in the orange. And let's see the another chart called distribution. Distribution. So let's see the distribution of the honey. So you can see that we are looking at the distribution 0, 1, 2, 3, 4. These are the different quarters. So I want to see with the year. And
fruit juices. Okay. Is split by quarter wise and key. So these are the distributions we can see of the different variables. So we are having different options, and we can see normal distribution also. So if any particular distribution you want to analyze, you can analyze like this. This is the normal distribution. What is the distribution as per normal distribution of the data? With the mean, you can see the mean of each quarter and the standard deviation of the each quarter of the sales. So we can plot these distributions like this. Okay. Now these are the different distributions. So you can see if you have knowledge of these distributions, you can analyze the different distributions. Okay. Excuse me, sir. हाँ सर बोलिए. सर सॉरी टू इंटरप्ट यू बट प्लीज यदि आप पहले हमें थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोड्यूस कराते हैं बाई पीपीटी और मशीन लर्निंग के बारे में, बिकॉज हम मुझे लगता है कि पार्टिसिपेंट्स सभी बिगिनर हैं इस फील्ड में, तो मशीन लर्निंग और फील्ड में जो इंट्रोड्यूशन कराने के बाद अभी एनालिसिस पार्ट पे पार्टिसिपेंट्स को उतना समझ में नहीं आएंगे चीज़ें, तो इंट्रोडक्शन इसको थोड़ा सा डिटेल में हो जाता तो दैट विल बी बेटर आई थिंक. Okay, sir. Actually, nowadays you know that a lot of softwares are coming like Python, right? Like there are many other softwares which are very very famous for machine learning, and Python is considered to be the number one. Python is considered to be the number one. Basically, there is a company, university in Switzerland. So they did a very beautiful thing. What they did, they converted all the Python script into the codes, into the icons. So these are the different icons which are representing the Python scripts, and we can use all the icons for the machine learning program, machine learning algorithm. Now, actually, first of all, I am showing you how to see the data set. So whenever you are going to analyze a data set, so how you can see the data set, how you can do the analysis like this. So actually, I started my lecture always with introducing the different icons, so that I can show you some of the exercise on machine learning. So I think now we are having 24 participants, and so let me ask from the participants, so should I continue or should I demonstrate the software again? I just want to know whether I should continue or okay. So let me show you some of the exercise after data visualization, and after this exercise, I hope you can understand what is my purpose. So I start a very rough exercise. So after looking the data, now we are going to apply the machine learning algorithm. First of all, I just want to know, have you heard about machine learning algorithm earlier? Have you heard about the different models that we are using in the machine learning? No answer is coming. Let me, okay. So now I am showing you one of the exercise, and it is a basic simple exercise of predicting with the help of machine learning algorithm. So I am having a data set with me. The data set, I am showing you the data set. So let's start from very basic. So this is the data set, and one of the data set is lifestyle. This is the data set, and basically
in this data set purchase, whether the customer purchase the car or not. So a company conducted a survey and they asked the customer, so tell me in the scale of 1 to 9 whether you will like to buy the car or not. So purchase is my dependent variable, and these are the different scores of independent variables, like what is the financial sensitivity of the customer, whether the customer is a fashionable or not, whether the customer is optimistic, whether the customer is having leadership qualities, whether the customer is explorer, or whether the customer is family oriented. So these are the independent variables, and on the basis of these independent variables, the company want to predict whether the customer will buy the car or not. So this is my dependent variable. Now I want to develop a predictive model, right? And I will use that predictive model with the help of machine learning algorithm. Okay. So now I am showing you how I can design the machine learning properly. Machine learning means software will learn each and everything from its own and predict on the data set. So this data set is divided into two parts. This another set is the lifestyle data. So I am showing you, this is the test data. So this is the another data set of how many 200. So this is the data set having 200 observations, and we can say in total we are having the data set of 600, 400 in my test data and 200 in my, this is my okay, I call it train data. Train. So there is a concept of training and testing. So I'm explaining you what is the meaning of training and testing. Training means you develop a model on the data set, that is called train data set, and test data set means the data which you actually use for the forecasting. So we are having two set of data set, 400 observation in the training data and 200 observation in the test data. Now the question is that how can I use these two type of data set for predicting the model? Okay, so I hope the data is clear to you. So we are having two set of data set. One is data set is known as training data set, and another data set is known as test data set. I will make my model on the training data set and will examine on the test data set. So I hope you understand the purpose of the exercise. So first of all, I am downloading both the data set. Okay, so now there are two files you can see. The one file is for making the model. So I call this file as the train data. Train data. Train data means I am going to develop the model on this. नाम change नहीं हुआ, दोबारा देखते हैं. Train data. Okay. So now you can see that this is a train data set. Similarly, my second data set is called testing data set. Testing data. Okay. So first of all, in machine learning, we always divide the data into two categories. One is to develop the model, and second is to test the model. ये आइकन जो है ये सिर्फ आपको सिंबॉलिक आइकन्स हैं, और ऑरेंज में हम इन सिंबॉलिक आइकन्स पे काम करते हैं, और ये आइकन्स आपको बताएंगे कि कहाँ से कहाँ पे जाना है और एनालिसिस कैसे करनी है. तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास डेटा सेट हो तो हम कैसे एक प्रेडिक्टिव मॉडल डेवलप कर सकते हैं और उसकी एक्यूरेसी डेवलप कर सकते हैं. तो आई वांट टू कंटिन्यू आफ्टर दिस. सो ट्रेन डेटा को देख लेते हैं कि पहले डेटा दिखता कैसे है.
तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ऑप्शन है डेटा टेबल का, तो ये डेटा टेबल आ गया। अब इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें डेटा दिखेगा। आपको ये सारा डेटा दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमने डेटा इंपोर्ट नहीं किया, तो पुराना वाला डेटा दिख रहा है। सो लेट मी इंपोर्ट दिस। हमने अब काम करना है लाइफ स्टाइल ट्रेन डेटा पे, तो ये मेरा लाइफ स्टाइल ट्रेन डेटा आ गया। और परचेज इज माई डिपेंडेंट वेरिएबल, सो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे कि ये मेरा टारगेट वेरिएबल है। क्लोज इट। नाउ इफ यू सी, your purchase is your dependent variable and all other variables are independent. मैंने शायद इसको डिफाइन कर दिया है, अप्लाई। सो हमने अपने परचेज वेरिएबल को टारगेट वेरिएबल डिफाइन करके अप्लाई कर दिया है। और अब एक बार फिर से देखते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट वेरिएबल शेडेड में आना चाहिए, शेडेड। सो दिस इज द सिंपल डेटा सेट। And if you want to visualize the numeric value, you can see all the columns. ये जितने बड़े ये bars होंगे उतनी बड़ी value होगी। खैर अब कलर यहाँ पे नहीं हो पा रहा। चलिए, तो ये हमारा कौन सा डेटा है? ट्रेनिंग डेटा। जिस डेटा को हमें ट्रेन करना है, ये हमारा वो डेटा है। इसी तरीके से इस डेटा को हमें टेस्ट करना है, तो देख लेते हैं। टेस्ट का मतलब है कि इस डेटा पे हमें प्रिडिक्शन एक्यूरेसी चेक करनी है कि हमारी प्रिडिक्शन में कितनी एक्यूरेसी है। तो इस डेटा को भी हम देख लेते हैं कि क्या कौन सा डेटा है हमारा ये। अभी दिस डेटा इज कॉल्ड टेस्ट डेटा, तो ये हमारा टेस्ट डेटा हो गया। और परचेज हमारा टारगेट वेरिएबल है, डिफाइन करते हैं टारगेट वेरिएबल, अप्लाई। आफ्टर दिस, ओके, नाउ माय डेटा सेट इज रेडी। नाउ आई एम गोइंग टू मेक ए मॉडल and I will see how much my model is predictive. तो मैंने एक और निकाला, हमने इसको बोला select columns, select columns। इसी तरह से यहां से भी मैंने select column लिया। अगर आपको कॉलम वाइज डिफाइन करना हो कि कौन सा वेरिएबल कौन सा है, तो यहाँ से हम कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से हमारे फीचर वेरिएबल हमें लेने हैं, कौन से फीचर वेरिएबल हमें नहीं लेने हैं। अगर आपको ये वेरिएबल नहीं लेना है, इधर भेज दो, लेना है इधर भेज दो। तो यहाँ पे हम चॉइस चूज कर सकते हैं कि कौन से वेरिएबल पे हमें काम करना है और कौन से वेरिएबल पे काम हमें नहीं करना है। तो ये इसलिए मैंने सिलेक्ट कॉलम लिया है कि अगर मैं वेरिएबल्स को हटाना या लगाना चाहूँ तो बहुत आराम से यहाँ पे इसको लगा सकता हूँ। तो देखिए ये मेरे वेरिएबल्स हैं और बिल्कुल ठीक है। अभी फिलहाल जैसे हमने डिफाइन किया था बिल्कुल वैसे ही है, और इसको हमें अभी चेंज नहीं करना है। और हमें जो मॉडल पहले टेस्ट करना है वो करना है लीनियर रिग्रेशन मॉडल। चलिए पहले इसको हम अप्लाई करते हैं टेस्ट एंड स्कोर में। टेस्ट एंड स्कोर में ये देखिए, लेकिन अभी तक हमने क्या नहीं दिया। हमने, अगर हम इसको क्लिक करेंगे कुछ नहीं आएगा। क्यों कुछ नहीं आएगा? क्योंकि हमने अभी तक कोई डिफाइन ही नहीं करा है कि हमने कौन सा मॉडल रन करना है। तो मैं इसमें मॉडल रन कर रहा हूँ रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन। या सो फर्स्ट ऑफ द सिंपलेस्ट मॉडल इज माय लीनियर रिग्रेशन मॉडल। सो मैंने लीनियर रिग्रेशन मॉडल को अप्लाई किया और अब देखिए आपकी लीनियर रिग्रेशन की वैल्यू आ गई है इधर 0.401। तो R square, you know that this regression model is representing the R square of 40%. I hope आपने R square को नाम सुना होगा। ये जितने भी हमारे मेजर्स हैं, MSE, मीन स्क्वायर्ड एरर, RMSE, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये हमें बताते हैं कि हमारे मॉडल की एक्यूरेसी कितनी है। So now you know that how simple it is to apply. Now if I click on the confusion matrix, so हमारे पास एक ऑप्शन होता है confusion matrix का। Let me check, अभी वो नहीं आ रहा है, इसको हम बाद में अप्लाई करेंगे अभी। और
So this is the one of the example that we can make a model and find out the accuracy of the model. Here accuracy is found out to be 40%, R square is found to be 40%, and the root mean square error is 2.022. तो एक हमारा सिंपलेस्ट मॉडल ये था. ऐसे मैं आपको कम से कम 7-8 मॉडल डेवलप करने वाला हूँ आज, और 1 by 1 हम स्टेप वाइज चलेंगे. ये हमारा एक छोटा सा मॉडल था जिसमें हमने लीनियर रिग्रेशन को टेस्ट किया कि हमारे डेटा पे ये कितना एप्लीकेबल है. तो हमने मॉडल बनाया ट्रेन डेटा से और उसको अप्लाई किया टेस्ट डेटा पे, टेस्टिंग डेटा पे, और हमें पता चला कि 40% डिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं with the help of the independent variable and the regression model. With the help of regression model. Okay. So एक एग्जांपल मैं अभी और लेने वाला हूँ. अगर हमें इस मॉडल को डिलीट करना हो तो हम सिंपली सिलेक्ट करते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं. हमारा काम बड़ा आसान है. लेकिन अभी मैं फिलहाल इसको डिलीट ही कर देते हैं, कोई बात नहीं, हम दोबारा फिर बना लेंगे. मैं कुछ एक्सरसाइज आपके सामने करना चाहता हूँ. एक एक्सरसाइज मैं आपको दिखा रहा हूँ जो मशीन लर्निंग की बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, जिसको हम कहते हैं डिसीजन ट्री. डिसीजन ट्री. तो क्या हम डिसीजन ट्री से प्रेडिक्शन कर सकते हैं? तो एक छोटा सा एग्जांपल और देखिए. हमने जब ये 5-6 एग्जांपल आप देख लेंगे तो मुझे लगता है कि आपको सेंस, जो सॉफ्टवेयर का सेंस है, वो शायद क्लियर हो जाए. तो हमने एक डेटा सेट लिया और अभी इसी को लेके चलते हैं परचेज को. और हमने अच्छा, अब क्योंकि डिसीजन ट्री में एक सबसे बड़ी पॉइंट क्या होता है, अगर आपको याद है, हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगोरिकल नेचर का होना चाहिए. तो डिसीजन ट्री कहाँ, क्लासिफिकेशन, okay. So I am taking a data set and I can see the data set here. So in this data set, my dependent variable is migration, whether the people migrated from villages to city or not. अगर वो migrate करते हैं तो 1, नहीं migrate करते तो 0. और हम ये देखना चाहते हैं कि क्या migration एग्रीकल्चर फील्ड, मेंबर्स ऑफ द फैमिली, कास्ट या अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन पे डिफाइन हो सकता है या नहीं हो सकता है. तो हमने एक डिसीजन ट्री डेवलप किया और ये ट्री कैसा दिखेगा ये देखते हैं ट्री व्यूअर में. और अगर मैं इसको दिखाता हूं आपको, तो आपको ये एक ट्री दिख रहा होगा. इस ट्री की खास बात क्या है कि आपको वेरिएबल्स, हम पहले बिल्कुल बेसिक से चलते हैं. दिस इज माय बेसिक ट्री. और अगर आप इसको बड़ा करना है तो यहाँ से बड़ा कर सकते हैं जूम से, और इसको अगर आपको विड्थ बढ़ानी है तो आप विड्थ बढ़ा सकते हैं. सो वी आर हैविंग डिफरेंट ऑप्शंस. अब देखिए, ये कह रहा है कि एग्रीकल्चर फील्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल which can define the decision tree. If the agriculture field is less than 41, अगर किसी के पास agriculture field 41 बीघा से कम है तो वो माइग्रेट करेगा ही करेगा. मतलब ये 1 का मतलब है कि वो माइग्रेट करेगा ही करेगा. और इसकी एक्यूरेसी 83.9% है. इसी तरीके से अगर किसी के पास एग्रीकल्चर फील्ड 41 बीघा से ज्यादा हो तो वो माइग्रेट नहीं करेगा. तो अकॉर्डिंग टू द मॉडल, if somebody is having the agriculture field less than 41, he will migrate 1. और अगर उसके पास ज्यादा जमीन है तो वो माइग्रेट नहीं करेगा. अब इसको लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं, थर्ड लेवल पे देखते हैं. तो अब जिनके पास 41
से कम है, अगर उनकी फैमिली में मेंबर्स चाहे 5 से ज्यादा हो या 5 से कम हो, वो माइग्रेट करेंगे ही करेंगे। ये भी हमारे पास 0 मतलब ये माइग्रेट नहीं करेंगे। एक लेवल और देखते हैं आगे, 4th लेवल पे क्या रिजल्ट आता है, 0 1। यहाँ पे हमारा रिजल्ट चेंज हो रहा है। आप देखिए हमारा यहाँ पे रिजल्ट चेंज हो रहा है और यहाँ पे भी रिजल्ट चेंज हो रहा है। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि अगर किसी के पास एग्रीकल्चर फील्ड 41 से कम है, मेंबर्स ऑफ द फैमिली 5 से कम है, और अगर उनके पास एग्रीकल्चर फील्ड 33 से ज्यादा है, तो वो शायद माइग्रेट ना करें। अगर फैमिली में कम मेंबर हो तो उनके पास अगर 33 से ज्यादा भी जमीन होगी तो वो माइग्रेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर उनके पास एग्रीकल्चर फील्ड 33 से कम है तो वो माइग्रेट करेंगे। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर ने हमें ऑटोमेटिकली बड़ा अच्छा मॉडल बना के दिया है, और दिस इज कॉल्ड डिसेंट ट्री मॉडल। और इस मॉडल की एक्यूरेसी हमें अब जानने की, एक्यूरेसी कितनी है, तो हम यूज करते हैं टेस्ट एंड स्कोर। ओके, तो आप देखिएगा हमारे पास टेस्ट एंड स्कोर का एक ऑप्शन आ गया, और हमने ट्री को कनेक्ट किया इसके साथ, और आपका टेस्ट एंड स्कोर की वैल्यू आ गई है, जो आपको बताएगी कि आपकी एक्यूरेसी का लेवल कितना है। तो एक्यूरेसी हमारी कितनी है, 93%। सो 93% इज द एक्यूरेसी ऑफ दिस मॉडल, and area under curve is 93%, 93%, 93%, 93। तो ये चार सारी वैल्यू आपको बता रही है कि हम मशीन ने जो लर्न किया है और उसके बाद जो प्रेडिक्शन की है, उससे उसकी एक्यूरेसी 93% है। 93% is a quite good figure, and this 93% we can identify with the help of confusion matrix। अब देखिए यहाँ पर confusion matrix बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स कहती है कि देखिए ये एक्चुअल डेटा है और ये प्रेडिक्टेड डेटा है। तो एक्चुअली में 720 में से 92.4 लोग ऐसे हैं जिनको माइग्रेशन नहीं करना था और प्रेडिक्शन भी उनकी नहीं करने की हुई है, और 93.7% लोगों को माइग्रेट करना था एक्चुअली में, और उन्होंने एक्चुअली में माइग्रेट किया भी है। अकॉर्डिंग टू द प्रेडिक्शन इन लोगों को माइग्रेट करना था और उन्होंने एक्चुअली में किया है। लेकिन कंफ्यूजन कहां पे आ रहा है? कंफ्यूजन आ रहा है 6.3% पे और 7.6% पे। मतलब ये वो लोग हैं जिनको मॉडल के हिसाब से माइग्रेट करना था लेकिन एक्चुअली में इन्होंने नहीं किया। इसी तरीके से 7.6% लोग ऐसे हैं जिन लोगों को मॉडल के हिसाब से तो माइग्रेट नहीं करना था लेकिन उन्होंने एक्चुअली कर लिया। तो हमारा कंफ्यूजन का एवरेज कितना हो गया? 7.6% प्लस 6.3%, अप्रोक्सीमेटली 7% लोग ऐसे हैं जिनमें हमारा मॉडल एक्यूरेट नहीं है। तो हमारी मॉडल की जो एक्यूरेसी है वो 93% है, जो कि काफी अच्छी है। इट्स वेरी गुड। ओके, तो आई होप यू आर हैविंग सम क्लैरिटी ऑन द वर्किंग ऑफ द मॉडल। तो ऐसे छोटे छोटे मॉडल हम बना के डेवलप कर सकते हैं अपने इसमें ऑरेंज में। अब एक मॉडल मैं आपको और दिखाता हूं। तो ये हमारा डिसेंट ट्री मॉडल है। अगर मान लीजिए अगर हमारे पास कोई किसी व्यक्ति का डेटा होता और हम ये चेक करते कि क्या वो माइग्रेट करेगा या नहीं करेगा, तो उसकी प्रेडिक्शन कैसे करेंगे, है ना? ये तो सिर्फ हमने एक मॉडल की एक्यूरेसी चेक करी है। लेकिन अगर इसी मॉडल को हमने ओपन छोड़ दिया का मतलब कि अगर कोई भी डेटा आया तो सॉफ्टवेयर अपने आप बताएगा कि ये बंदा माइग्रेट करेगा या नहीं करेगा। तो मैं एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना चाहता हूँ कि हमें किसी भी व्यक्ति का अगर हम डेटा प्रोवाइड करें तो मशीन खुद ही बताए कि भाई ये माइग्रेट करेगा या नहीं करेगा। तो अब जो मेरा नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो ये है कि कैसे एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम डेवलप किया जाए और कैसे ये देखा जाए कि वो हमें आंसर भी खुद ही मिल जाए कि भाई वो माइग्रेट करेगा या नहीं करेगा। तो मैं एक ऐसा मॉडल डेवलप करने वाला हूँ भी कि हमें सॉफ्टवेयर खुद ही बताएगा कि भाई वो बंदा माइग्रेट करेगा या नहीं करेगा। तो देखते हैं। अभी हमने सिर्फ मॉडल की टेस्टिंग करी है। मॉडल को अप्लाई कैसे करते हैं देखिए। आपको ये चीजें ना काफी इंटरेस्टिंग लगेंगी, बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है। और क्योंकि मेरे पास 1.5 घंटे का ही टाइम है तो मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। सो लेट मी ट्राई अनदर मॉडल। आप देखिए
अब मैंने मॉडल बना दिया और अब मैं चाहता हूं कि कोई भी डेटा हो मेरे पास, उसकी प्रिडिक्शन ऑटोमेटिकली हो जाए। कैसे होगा देखते हैं। अब हमने रीनेम किया इसको और हमने कहा ये ओरिजिनल डेटा है, ओरिजिनल डेटा, मतलब हम इस डेटा पे मॉडल बनाने वाले हैं। तो पहले हम इस डेटा पे मॉडल बना लें और ये हमारा डेटा हम निकाल लें जरा अपना डेटा। और ये हमारा माइग्रेशन में ये ट्रेन डेटा है, टेस्ट डेटा है। तो ट्रेन डेटा को लेते हैं। ट्रेन डेटा का मतलब होता है कि जिस मॉडल पे हम मॉडल डेवलप कर रहे हैं, जिस डेटा पे हम मॉडल डेवलप कर रहे हैं वो हमारा ट्रेन डेटा होगा। डेटा टेबल डेटा आप यहाँ देख सकते हो। ये डिपेंडेंट वेरिएबल आपका शेडेड होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें इसी वेरिएबल को प्रिडिक्ट करना है। तो अब देखिए, अब हम कर रहे हैं प्रिडिक्शन। तो मैंने यहाँ पे लिया प्रिडिक्शन। सो दिस इज द प्रिडिक्शन, ठीक है। तो डेटा हमने इधर से लिया, इस डेटा पे हमने प्रिडिक्शन किया और उस डेटा की हमने कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी निकाल ली है। सो दिस इज द कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अब लेकिन हमने मॉडल कौन सा यूज करना है वो हमें सोचना पड़ेगा। तो मैं मॉडल ले रहा हूं confusion matrix. Okay. मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। ये इस डेटा को मैंने कर दिया टेस्ट डेटा। एक्चुअली हमें थोड़ा प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड देखना पड़ता है कि ये हमारा डेटा जो है वो अब हमारा टेस्ट डेटा हुआ और इसको मैं कहता हूं ओरिजिनल डेटा। रीनेम ओरिजिनल डेटा। ओके, तो डेटा हमारा ट्रेन डेटा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो डेटा हमारा डिफाइन हो गया है। इसको डेटा को हम डेटा टेबल से देख लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब मैंने इसको चेंज इसलिए किया क्योंकि ओरिजिनल डेटा और प्रेडिक्शन डेटा के बीच में एक मॉडल आना चाहिए। तो मैंने सोचा कि पहले डिसीजन ट्री मॉडल पे जो हमने टेस्ट किया था उस मॉडल को चेक करते हैं। और अब देखिए, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया प्रेडिक्शन के साथ। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मेरा डेटा ठीक है नहीं है। ये मेरा टेस्ट डेटा हो गया, डेटा टेबल के साथ अटैच हो गया, प्रेडिक्शन के साथ अटैच हो गया। ओरिजिनल डेटा मेरा ये है, टेस्ट डेटा ये रहा। ओरिजिनल डेटा को मैंने पहले ट्री के साथ कनेक्ट किया, मॉडल के साथ, मॉडल को प्रेडिक्शन के साथ, प्रेडिक्शन कंफ्यूजन मैट्रिक्स के साथ, बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास। अब यहाँ पे प्रेडिक्शन में देखिए, आपको दिखेगा ये जो प्रेडिक्शन हो रही है ये आपके टेस्ट डेटा की हो रही है, टेस्ट डेटा की प्रेडिक्शन हो रही है आपके साथ। और हमारे कंफ्यूजन कितनी है? कंफ्यूजन इज 95 प्लस 85 डिवाइडेड बाय 2, अप्रोक्सीमेटली 90% प्रेडिक्शन हमारी हो पा रही है। 95% इज द एक्यूरेसी मॉडल। अब जो मैं आपको चीज दिखाने वाला हूँ वो ये है कि हमने डेटा सेट पे गए और ये जो हमारा टेस्ट डेटा है, नहीं ये नहीं है हमारा डेटा, सॉरी, माइग्रेशन का डेटा है। ये हमारा माइग्रेशन टेस्ट डेटा है। अब मैं इसमें माइग्रेशन ये सारा पूरा डिपेंडेंट वेरिएबल को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि मैंने पूरा डिपेंडेंट वेरिएबल डिलीट कर दिया है, सेव। अब मुझे नहीं पता कि ये लोग किन लोगों ने माइग्रेशन किया, किन लोगों ने माइग्रेशन नहीं किया। और एक बार को फिर से रिफ्रेश करते हैं इसको।
रीलोड। और अब आप प्रिडिक्शन में देखिए, प्रिडिक्शन में डेटा टेबल है हमारे पास। हाँ, अब देखिए, अब आप देखिए हमारे टेस्ट डेटा में माइग्रेशन का वेरिएबल नहीं है, माइग्रेशन इज नॉट देयर, इट इज ए क्वेश्चन मार्क। सो क्या हमारा ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो प्रिडिक्शन हो रहा है, अब वो प्रिडिक्शन नहीं कर रहा है। ओके, नाउ यू कैन चेक इट, लेट्स सी। अभी भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमारा डेटा होना चाहिए माइग्रेशन का। डेटा प्रिडिक्टर प्रिडिक्शंस, ओके। सो तो हम यहाँ पे एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं, प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। दिस इज द प्रॉब्लम। इस पे हम एक डेटा, एक सबसेट और बना के देखते हैं, लेट्स सी। So I am taking a random subset of this data set and want to check the prediction accuracy. So I am taking a random data set and using the test data set. Okay. I want to just check one thing, whether without data I can predict or not. So ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही है. Okay. Now let's save it and see what is the result on the model. Yeah. So now we are having the data. So आप देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली डेटा अपना आप पिक कर रहा है. It is linked and now prediction is there or not. Numeric, target, categorical, reload, reset. इसमें एक्चुअली काफी सारी चीजें ऑटोमेटिक होती हैं, तो हमें बड़ा केयरफुली कमांड देना होता है, और आपने एक छोटा सा कमांड भी गलत कर दिया तो ये काम नहीं करेगा. अब इसमें सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या दिक्कत आ रही है? द ट्री, अच्छा इसमें हमने ट्री व्यूअर भी लगाना है. हमारा ट्री तो बन रहा है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास ट्री बन रहा है, और प्रेडिक्शन नहीं हो रही है. लेकिन ओके, मेरे ख्याल से कुछ डेटा टू डेटा. ओके, predictions. Yeah, now you can see the prediction. So this tree, this is the prediction according to the tree and this is the actual value. और हमें कहीं ना कहीं हमारी भी मिस्टेक हो रही है, कहीं ना कहीं हमने शायद इसमें टारगेट वेरिएबल डिफाइन नहीं किया. देखिए यहाँ पर हमने टारगेट वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है. तो हाँ, ये छोटी सी
मिस्टेक शायद हम कर रहे थे. या नाउ यू कैन सी दैट दिस इज द एक्चुअल वैल्यू एंड दिस इज द प्रेडिक्टेड वैल्यू, एंड एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू में जो डिफरेंस है वो हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स में आ जाएगा. So the prediction is 93.6 plus 100 divided by 2. This is the prediction accuracy of the model. Okay. So थोड़ा सा आपको हो सकता है क्लैरिटी आई हो कि हम कैसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं. इसमें अगर आप चाहते हो कि हम दो मॉडल को कंपेयर भी करके देखें कि क्या हम दो मॉडल को कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. सो लेट्स सी. ये ट्री हमारा सिर्फ एक ट्री है. ऐसे अगर 500 ट्री होते तो हमारी प्रेडिक्शन कैसे होती? तो हम एक मॉडल डिफाइन करते हैं. दिस मॉडल इज नोन एज रैंडम फॉरेस्ट. अब आप इसमें देख रहे हैं कि रैंडम फॉरेस्ट में ट्री में तो एक ही ट्री है, यहाँ पर हजारों ट्री है. कितने ट्री है? नंबर ऑफ ट्रीज 10. अब इसको हम इंक्रीज कर देते हैं 500 ट्री से 500 ट्रीज. कि अगर मैं ऐसे 500 मॉडल बनाऊं तो क्या मेरी प्रेडिक्शन एक्यूरेट होगी? तो दिस इज माय क्वेश्चन. और ये 5000 तो खैर ज्यादा हो गए, 500 ले लेते हैं बस. 500. अब नाउ लेट्स ज्वाइन इट. तो हमारी प्रेडिक्शन दो जगह से हो रही है, एक तो ट्री से हो रही है और एक रैंडम फॉरेस्ट से हो रही है. अब इन दोनों में मॉडल अच्छा कौन सा है वो हम नीचे देख लेंगे. और ट्री में हमारी प्रेडिक्शन जो हो रही है वो 96% एक्यूरेसी दे रही है, और रैंडम फॉरेस्ट की जो प्रेडिक्शन है वो हमारी 98% है. सो 98% प्रेडिक्शन इज क्वाइट गुड. 98% तो आप मतलब अब ये समझ लो कि इतना अच्छा मॉडल डेवलप हो रहा है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते. और 96% प्रेडिक्शन के बाद हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, ट्री का और रैंडम फॉरेस्ट का. तो रैंडम फॉरेस्ट में हमारी कंफ्यूजन जो आ रही है वो 97.8 प्लस 100 डिवाइड बाई 2 है, और ट्री में हमारी प्रेडिक्शन आ रही है 93 प्लस 100% बाई 2. तो ये हमारा प्रेडिक्शन का एक्यूरेसी है. और लेकिन हमारी प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी रैंडम फॉरेस्ट में थोड़ी ज्यादा आ रही है, विच इज क्वाइट गुड. ओके. तो ये आपको मैंने एक छोटे छोटे से मॉडल बना के दिखाए हैं. अब मैं थोड़ा सा आपको एक बड़ा मॉडल बना के दिखा रहा हूँ कि फाइनली हम कैसे काम करते हैं. और ये जो मॉडल मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो हमारा काफी अच्छा एडवांस मॉडल है, और आई होप आपको पसंद आएगा. लेकिन पहली बार है, क्योंकि आप पहली बार देख रहे हैं तो मुझे पता है कि काफी लोगों के ऊपर से जा रहा होगा. लेकिन बिलीव मी, अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो कभी फिर से मैं आपको डिटेल में सिखा दूंगा. बट थोड़ा ट्रेलर तो मुझे दिखाना ही चाहिए इसका. अब देखिए, अब मैं एक बड़ा मॉडल बनाने वाला हूँ. ये मैंने दो फाइल ली, और एक डेटा को मैं बोलूंगा टेस्ट डेटा और एक को मैं बोलूंगा ट्रेन डेटा. अब इस डेटा को मैंने लिखा रीनेम, ये मेरा होगा टेस्ट डेटा, और ये वाला मेरा जो डेटा है इसको मैं बोलूंगा ट्रेन डेटा. ट्रेन डेटा. अभी हमारा ट्रेन डेटा हो गया, टेस्ट डेटा हो गया. अब इसमें कोई सा भी डेटा आप ले लीजिए. जैसे ये मेरा माइग्रेशन ट्रेन डेटा है, चलेगा. और ये मेरा टेस्ट डेटा है, इसको मैं टेस्ट डेटा ले लेता हूँ इसको. आप इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो आप टेस्ट डेटा को भी ले सकते हैं. और अब मेरे दोनों डेटा सेट आ गए हैं. अब मैं इसको डेटा टेबल के साथ कनेक्ट कर देता हूँ. डेटा टेबल हमें डेटा देखने के काम आती है. डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सिमिलरली डेटा टेबल. तो सबसे पहले हम डेटा टेबल से कनेक्ट करते हैं ताकि हम एक बार डेटा को चेक कर लें कि हमारा डेटा सिलेक्टेड है नहीं है. और बिल्कुल सिलेक्टेड है, टेस्ट डेटा. अब देखिए, इस डेटा पे तो हम करेंगे प्रेडिक्शन. तो मैं लिख दूं यहाँ पे प्रेडिक्शन. हम देखेंगे कि हमारा मॉडल कितना एक्यूरेट प्रेडिक्शन दे रहा है. और यहाँ पर हम मॉडल लगाने वाले हैं बहुत सारे. तो एक मॉडल में ले लेता हूँ लीनियर मॉडल, लीनियर रिग्रेशन. और लीनियर रिग्रेशन
ठीक है। और दूसरा मैंने अप्लाई किया न्यूरल नेटवर्क का भी आपने नाम सुना होगा। न्यूरल नेटवर्क भी हमारा हो गया है। और प्रेडिक्शन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, न्यूरल नेटवर्क। और एक मॉडल, इसको हमें मिनिमाइज करना है तो कंट्रोल माइनस का साइन आप यूज कर सकते हैं। और दूसरा मॉडल मैंने लिया पॉलिनोमियल क्लासिफिकेशन। ये सारे मशीन लर्निंग के टूल्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक टूल लिया ट्री, जो आपने अभी देखा भी था कि हम ट्री ले सकते हैं और थोड़ा सा इसकी डिजाइनिंग करनी पड़ेगी ताकि क्लियर आपको दिखे। और इसके बाद हमने लिया रैंडम फॉरेस्ट, जो कि मशीन लर्निंग का एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। और फिर हमने लिया लॉजिस्टिक रिग्रेशन। और एक जो 2-3 मॉडल और डेवलप हो रहे हैं आजकल, एक हो रहा है SVM, आपने इसका भी नाम सुना होगा। जो लोग मशीन लर्निंग में काम करते हैं उन लोगों ने SVM का नाम सुना होगा। और एक जो सबसे घटिया मॉडल होता है दैट इज कॉल्ड नेव बायस, बिल्कुल बेसिक मॉडल। ये सारे देखिए मशीन लर्निंग के मॉडल हैं और मुझे डिसाइड करना है कि मेरे डेटा में कौन सा मॉडल अप्लाई होने वाला है। तो मैंने सारे ही मॉडल यूज कर लिए और मैं इसको थोड़ा लगा रहा हूँ कि ताकि ओके, अब हम इसको अप्लाई करते हैं। पहली प्रेडिक्शन, हम इन सभी मॉडल से हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं डेटा को। और ये हमारा डेटा चला गया। ओके, तो अब मैं ये देखने वाला हूं कि मेरा जो मॉडल है कौन सा मॉडल मैं फाइनली यूज करूं अपने प्रेडिक्शन के लिए। अब प्रेडिक्शन एक्यूरेसी लॉजिस्टिक रिग्रेशन की तो 98.7% है, जो कि बहुत अच्छा है। नेव बायस मैंने आपसे कहा था बड़ा घटिया मॉडल होता है, तो इसकी प्रेडिक्शन एक्यूरेसी सिर्फ 87% है। रैंडम फॉरेस्ट की एक्यूरेसी भी हाईएस्ट है 98.7, और डिसीजन ट्री की प्रेडिक्शन एबिलिटी है 96.2। अच्छी है लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन से तो पुअर है। SVM मॉडल की प्रेडिक्शन 97.5 है, जो कि कमी है। और न्यूरल नेटवर्क भी आपका 98.7 है। तो इन मशीन लर्निंग में आपको सबसे अच्छी प्रेडिक्शन जो दे रहा है वो दे रहा है न्यूरल नेटवर्क और रैंडम फॉरेस्ट और लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो ये 3 मॉडल एक ऐसे मॉडल हैं जिनकी प्रेडिक्शन एक्यूरेसी सबसे हाईएस्ट होती है। और मशीन लर्निंग में इन मॉडल्स को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। सबसे हाईएस्ट यूज आपका जो किया जाता है वो इन्हीं का किया जाता है। और इसके बाद हम इसी कंसेप्ट को एक तरह से और भी हम चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको वो शो करता हूँ जरा। मेरे ख्याल से अब आपको शायद ये समझ में आना शुरू हो गया होगा कि हम बेसिकली कैसे यूज करते हैं इस ऑरेंज सॉफ्टवेयर को। ये ऑरेंज सॉफ्टवेयर सिर्फ आइकन्स का और नॉलेज का खेल है। अगर आपको बेसिक नॉलेज है और आपको पता है कि कौन सा मॉडल मुझे लगाना है, कौन सा यूज करना है, तो हम ऑरेंज को यूज कर सकते हैं। अब हम एक काम और करते हैं, इनकी प्रेडिक्शन एक्यूरेसी देखते हैं। तो मैंने इन सभी मॉडल को अप्लाई किया। एक्सक्यूज मी सर, क्या इस सॉफ्टवेयर में हमें प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं सर, प्रोग्रामिंग ऑलरेडी डिसाइडेड है। मैंने देखिए, अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है तो फिर आप पाइथन सीखिए, तो आपको पाइथन सीखना पड़ेगा। अच्छा, इसमें प्रोग्रामिंग की कोई नीड नहीं है? नहीं सर, ये तो गेम है। मैं तो इसको खेल कहता हूँ, बच्चों का खेल है। ये तो डेटा साइंस का गेम है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ इसका एक ट्रेलर दिखाया है। इसमें क्या क्या हो सकता है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ओके सर, ओके, प्लीज कंटिन्यू। ये तो जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल, ट्रेलर भी नहीं है सर, ये तो बहुत ही मतलब बेसिक है। और ये हमारा टेस्ट स्कोर है और इसको हमने कनेक्ट किया कंफ्यूजन मैट्रिक्स के साथ। और आप देखिए, अच्छा अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत है। डेटा
अच्छा, हम डेटा को भी शायद इसमें कनेक्ट करते हैं. यस, नाउ ओके. सो हमारा प्रेडिक्शन में तो रिजल्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत हो सकती है. एक्चुअली ये थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया है, तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है यहाँ पे, जबकि बहुत अच्छा रिजल्ट आता है मॉडल कंपैरिजन का. इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज. learner permission data. ओके, तो हमारा भी टेस्ट स्कोर तो शायद काम नहीं कर रहा है इसमें. ट्रेन डेटा टेबल, सो एवरीथिंग इज फाइन. प्रेडिक्शन तो हमारी कम से कम हो ही रही है, तो वी कैन फाइंड आउट द प्रेडिक्शन, और शायद प्रेडिक्शन को हटाने के बाद हम टेस्ट स्कोर पे काम कर सकते थे क्या. सो दीज आर सम ऑफ द इंस्टेंसेस, एंड मैं आपको कुछ और रेडीमेड मॉडल दिखाता हूँ, जैसे जो हम लोग फ्रीक्वेंटली रन करते हैं. सो आई एम शोइंग यू वन मोर. there is a text. Okay, so let's see whether it is working or not. या अब आप देख रहे हैं कि इस वाले मॉडल में ये मेरा मॉडल ऑलरेडी बना हुआ है, और मैं ट्राई करता हूं कि इस मॉडल को रन करके आपको दिखाऊं. इस मॉडल में हम क्या करेंगे कि हम बिल्कुल लाइव डेटा लेंगे ट्विटर से, और उस डेटा को हम एनालिसिस करेंगे. सो सॉफ्टवेयर थोड़ा हैंग हो गया क्योंकि मैं इन दिस केस या नाउ इट इज वर्किंग. सो दिस ये आप देख सकते हैं, ये एक ट्विटर है. बेसिकली ये ट्विटर का साइन है. मैंने इस पे क्लिक किया, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या मैं ट्विटर के लाइव डेटा पे काम कर सकता हूँ. तो मुझे देखना पड़ेगा कि आज का रिसेंट टॉपिक क्या है. तो जैसे सपोज कीजिए मैंने स्टॉक मार्केट एक वर्ड सेलेक्ट किया कि जिसपे मुझे सारे ट्वीट्स डाउनलोड करने हैं, और ये मेरी ट्विटर की है एपीआई की. ये ट्विटर की एपीआई की आपको ट्विटर से मिलेगी, और मुझे कितने ट्वीट चाहिए, 2000 ट्वीट्स डाउनलोड करने हैं, और ये इंग्लिश में होने चाहिए सारे. और ओके, अगर मैं सर्च करता हूं, देखिए यहाँ पर आप सबसे बड़ी खास बात क्या है कि सॉफ्टवेयर खुद ब खुद इस समय सॉफ्टवेयर इंटरनेट में जा रहा है, इंटरनेट में वो ट्विटर में जाएगा, और वो एक एक करके आपको सारे ट्वीट निकाल रहा है आपके लिए ऑटोमेटिकली. तो 5% आपको यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है कि मेरा कितना डेटा इसमें आ गया है, कितना डेटा आने वाला है. ये सॉफ्टवेयर इंटरनेट से डायरेक्ट कनेक्ट होता है. ये सॉफ्टवेयर इंटरनेट से डायरेक्ट डेटा लेता है, और आपको कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ कमांड देनी होती है, और आपका सारा डेटा ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा. और डाउनलोड होने के बाद बहुत इजीली आप उसको एनालाइज कर सकते हैं. लेकिन थोड़ा सा इसके लिए इंटरनेट फास्ट होना चाहिए. मेरा इंटरनेट अभी इतना फास्ट नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा अपनी ऑफिस से दूर बैठा हूँ थोड़ा सा आज, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है. अदरवाइज 2 मिनट में ये सारा डेटा डाउनलोड हो जाता है. खैर 16% हो चुका है, आप देख रहे हैं आपके सामने ही है सारी प्रोग्रेस. आप इसमें आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो डायरेक्ट डेटा ले सकते हैं आप. तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसके लिए. मीनवाइल अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं. और the progress is going on here. You can see here also, you can see the progress.
सर आप अभी बताए थे कि इसमें डाटा एनालिसिस के अलावा और कुछ भी हो सकता है, और क्या है सर इसमें फीचर्स? इसमें डेटा विजुअलाइजेशन हो सकता है, डेटा एनालिसिस हो सकती है, डेटा माइनिंग हो सकती है, डेटा मशीन लर्निंग के टूल कनेक्ट हो सकते हैं, आप फोरकास्टिंग कर सकते हैं। देखिए ये इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे डेटा, आप डेटा में ये सारी चीजें कर सकते हैं जितनी भी इसमें लिखी हैं, और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन, ये सारी डेटा विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स हैं। यू कैन विजुअलाइज द डेटा। जो मेरी पहली एक्सरसाइज थी वो बेसिकली विजुअलाइजेशन पे थी, और उसके बाद ये सारे मॉडल आप डेवलप कर सकते हैं, केएनएन मॉडल, एसवीएम मॉडल, लीनियर रिग्रेशन मॉडल, रैंडम फॉरेस्ट ट्री, लॉजिस्टिक, नेव बायस, अडा बूस्ट, न्यूरल नेटवर्क, ये सारे मॉडल जो है लेटेस्ट मॉडल्स हैं, ये आप इसको रन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आप ये प्रेडिक्शन के लिए होती है कि आपकी प्रेडिक्शन कितनी एक्यूरेट है, और उसके बाद अनसुपरवाइज्ड, ये आपके क्लस्टरिंग क्लासिफिकेशन टेक्निक्स है, और उसके बाद टाइम सीरीज एनालिसिस है। अगर आपके पास कोई टाइम सीरीज है जैसे स्टॉक मार्केट वगैरह, आप उनको फोरकास्ट कर सकते हो। याहू फाइनेंस से ऑटोमेटिकली डेटा कनेक्ट कर सकते हो। सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि आपको डेली के डेली प्रेडिक्शन करेगा, डेटा वो ऑटोमेटिकली याहू से लेगा और आपको प्रेडिक्ट करेगा। और ये सारे टाइम सीरीज के मॉडल्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। आप टेक्स्ट माइनिंग कर सकते हैं, जो मैं आपको दिखाने वाला भी हूँ। आप डेटा सीधा गार्जियन से, न्यूयॉर्क टाइम्स से, ये पब्लिकेशन मेडिकल से, ट्विटर से, विकीपीडिया से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं डेटा को, और यू कैन डाउनलोड इट, यू कैन डू दी ऑल ऑफ दीज एनालिसिस। और इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे इसमें एड-ऑन्स होते हैं। देखिए अगर आप ऑप्शन में जाके एड-ऑन्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ना जो लिस्ट है वो आ जाएंगे कि भाई ये सॉफ्टवेयर आपको कौन कौन सी लिस्ट दे रहा है। देखिए आप जियो पॉलिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं, इमेज को एनालाइज कर सकते हैं, नेटवर्क एनालिसिस कर सकते हैं, प्रोटोटाइप कर सकते हैं, ये सारी बायो इन्फॉर्मेटिक्स कर सकते हैं। तो ये सारे एडिशंस हैं जो आप सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। और अभी एक्चुअली काफी मैंने भी इतना सारा अभी एक्सप्लोर नहीं किया है। स्पेक्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें इसमें आप कर सकते हैं। और मैं भी खुद लर्निंग स्टेज पे हूँ, और इंडिया में इसके ट्रेनर भी ना के बराबर हैं, ऑलमोस्ट नन है। तो मैंने अभी ऑरेंज पे ट्रेनिंग देना शुरू किया है इस साल, और मेरा मुंबई यूनिवर्सिटी में एक कोर्स चल रहा है ऑरेंज के ऊपर। हालांकि वो 15 दिन का कोर्स है, तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है। आज तो मैं आपको ट्रेलर दे रहा हूँ बस। हमारा एक सेशन, जितनी भी मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है, हर एक्सरसाइज कम से कम एक अलग सेशन लेती है, क्योंकि हमें पूरा मैथमेटिकल से बताना पड़ता है। तो देखते हैं, अभी 84% ट्वीट्स डेवलप हो चुके हैं। %87। तो हमारा 95% ट्वीट डाउनलोड हो चुका है, और 96, 97, 98, 99 एंड 100। तो देखिए आपको डेटा ट्विटर से डायरेक्टली मिल रहा है, और हमने उसके बाद डेटा में प्री प्रोसेसिंग करी है। जैसे आपको सेंटेंस को लोअर केस में करना है, यूआरएल्स हटाने हैं, एचटीएमएल हटाने हैं, और एसेंट हटाने हैं। अगर आपको स्टॉप वर्ड डिक्लेयर करने हैं तो स्टॉप वर्ड आपको यहाँ से डिक्लेयर आप कर सकते हैं, और मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। और उसके बाद आपने वर्ड क्लाउड डेवलप किया, तो हमारा ये वर्ड क्लाउड कुछ कैसे निकल के आ रहा है देखते हैं। हाँ, तो आज मार्केट का जो वर्ड क्लाउड है वो ये है।
लोग ट्रम्प की बातें कर रहे हैं, बिजनेस की बातें कर रहे हैं, स्टॉक क्रैश की बातें कर रहे हैं, इकोनॉमी की बातें कर रहे हैं, तो शायद मेरे ख्याल से कुछ क्रैश हो गया होगा इकोनॉमी में, और आज थोड़ा सा नेगेटिव है, आज वर्ड क्लाउड थोड़ा सा नेगेटिव आ रहा है, बैंक going stock, buy going stock, market live, so these are the words which are very popular. और 283 लोग आज ट्रम्प की बातें कर रहे हैं, शायद कोई न्यूज आई होगी ट्रम्प की, अच्छा क्रैश की बातें हो रही है। और उसके बाद हमने सेंटिमेंट एनालिसिस करी है, तो सेंटिमेंट एनालिसिस में देखते हैं क्या सेंटिमेंट है। ओके, आई थिंक तो ये देखिए आपके ये पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, ये 3 तरह के सेंटिमेंट निकल के आए हैं कि किस ट्वीट में कितने सेंटिमेंट हैं। तो हमारे पॉजिटिव सेंटिमेंट, नेगेटिव सेंटिमेंट, न्यूट्रल सेंटिमेंट निकल के आते हैं। तो दिस इज दी सेंटिमेंट्स, और अगर हम इनको एज ए डेटा सेव कर लें तो हम इन सेंटिमेंट का एवरेज भी निकाल सकते हैं। सो लेट मी सेव इट, सेव एज, मैं देखता हूँ इसको सेव करके क्या ये सेव हो पाएगा। डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट सेव, और हमारा शायद डेटा स्टॉक मार्केट सेव, हाँ ये सेव हो गया है, ऑलरेडी सेव हो गया है। और हम सिर्फ अब क्या करने वाले हैं कि उस डेटा में सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव सेंटीमेंट को प्रिडिक्ट करने वाले हैं कि कितना प्रिडिक्शन है। तो आपका पूरा डेटा सेव हो गया जिसपे आपने जो आपने इंटरनेट से निकाला था, और हमारे पास 22% पॉजिटिव है और 77% न्यूट्रल है आज। तो दिस इज दी सेंटीमेंट। हालांकि मैं नेगेटिव की ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, तो सॉफ्टवेयर कह रहा है कि 77% आज लोग न्यूट्रल हैं और 22% पॉजिटिव है। तो दिस इज दी result of the analysis. Okay, so these are the different techniques which we can apply in the software. Now I am going to answer your query. So after demonstration of the few exercise, I have so many exercises with me, but let me ask you the different queries you have in your mind so that I can answer them. So if you have any query, please ask, and I will try my best to answer your queries. So you have seen the software. The software is quite amazing software, and the software is, you can say it is a future of machine learning. And I know that after a few days this software will be in heavy demand, and I also got a call from different universities to teach this subject as a data science, because nowadays in computer science BTech programs, this is one of the going to be very popular course in coming years, because anybody who is doing computer science engineering BTech must understand the software, so that they can increase the programming or improve the programming, or you can connect this software with the programming with the live data set and can find out some more output. So if any participant has any doubts, I think sir would be more than happy to take it. आज बहुत सारे डाउट नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा एक्चुअली कि हो क्या रहा है। लेकिन ये मैं अच्छी तरह से इस बात को समझता हूँ कि लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन पार्टिसिपेंट को ये जानना जरूरी है कि ऐसा भी होता है मार्केट में। ऐसा एक आजकल सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, नई चीजें आ रही है, डेवलप हो रही हैं,
और आपको उनके बारे में अवेयर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अवेयर होंगे तभी आप सीखेंगे, और तभी जब आप सीखेंगे तभी वो स्टूडेंट को सिखा पाएंगे आप। तो अवेयर होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट था कि भाई आप, हो सकता है कि काफी लोगों ने रैंडम फॉरेस्ट का नाम ही ना सुना हो आज तक, हो सकता है आपने डिसेंट्री यूज ही ना किया हो कभी आज तक, या आपने कभी ट्विटर को डेटा को इस तरह से कभी जनरेट ही ना किया हो। तो मुझे ये तो लग रहा है कि शायद आपको बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं है इस चीज का, बट ये फ्यूचर है, दिस इज द फ्यूचर। जब मैंने 2008 में एमओएस की ट्रेनिंग करानी शुरू की थी तो मैंने कहा था आने वाले 80% पीएचडी में लोग एमओएस लगाएंगे, और वो हो भी रहा है। मतलब 80% पीएचडी जो प्राइमरी डेटा में होती है उसमें एमओएस लगता है। इसी तरह से मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में मशीन लर्निंग की जब भी बातें होंगी तो ये पाइथन और ऑरेंज का नाम आएगा ही आएगा। Right, sir. Thank you for gracing us with your presence, sir. And I am sure that some of the participants would have gained a lot with your expertise and your experience. It's been an honor and pleasure having you with us. Thank you, sir. So thanks. There is no query? No, sir. कमाल है। Okay. So fine, if there is no query, no issues. ओके, मैं चैट बॉक्स से कुछ क्वेरी ले रहा हूँ, देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि अगर कोई क्वेरी हो, वैभव ने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। Sir, what kind of models are used in modern day chess engine like Stockfish? Also, is it beneficial to break data in parts and then apply separate model input accuracy? Yeah. So actually, this model, you can break the data into different parts. Normally, we divide the data into two parts, that is trained data and test data. And we will develop the model on the trained data and will forecast the test data. So it is very much useful in that. And you can link this software with the internet so that data will be automatically from there, and you can analyze, process the data and get the output automatically. और ये CABALR पूछ रहे हैं कि सॉफ्टवेयर का नाम क्या है। सॉफ्टवेयर का नाम है Orange. It is manufactured by, made by university, one of the university in Switzerland. And तो राजेश जी पूछ रहे हैं कि कह रहे हैं कि आपने शेयर की नॉलेज, थैंक यू। एक पॉजिटिव मुझे मैसेज मिला है पूरे चैट बॉक्स में, सो थैंक यू राजेश, थैंक यू फॉर सेइंग दैट। सर ये जो ऑरेंज है ये कम्प्लीटली फ्रीली है या कुछ इसका ड्यूरेशन होता है? सर ये अभी 100% फ्री है। ओके, 100% फ्री है, और इसका कोई अभी तक कमर्शियल लाइसेंस नहीं बना है। तो एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर एक यूनिवर्सिटी ने बनाया है, और उन्होंने सॉफ्टवेयर को बिल्कुल फ्री कर दिया है। ओके, सो सर यदि हम इसको अदर मशीन लर्निंग टेक्निक से यदि इसका कंपैरिजन करते हैं लाइक पाइथन एंड एनी अदर, सो हाउ टू इसको आप वहाँ उनके मुकाबले कैसे रेट करते हैं? तो देखिए, पाइथन को सीखने में ना आपको 6 महीने लगेंगे कम से कम, लेकिन इस सॉफ्टवेयर को सीखने में सिर्फ आपको 2 दिन लगेंगे बस। अगर जैसे अगर आप कभी मतलब 1 दिन की वर्कशॉप या 2 दिन की वर्कशॉप ज्वाइन करते हैं ऑरेंज की, तो आप इसको 2 दिन में सीख सकते हैं। लेकिन पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो 2 दिन में नहीं आएगी, वो आपको 6 महीने में भी नहीं आएगी एक्चुअली। तो जब ये बहुत यूजर फ्रेंडली है, बहुत ज्यादा। तो जब हम इसको क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चे बड़े एंजॉय करते हैं इसे, ऑरेंज से। तो स्टूडेंट को बड़ा पसंद आता है, क्योंकि बहुत जल्दी उनको बहुत ही अच्छी चीज मिल जाती है।
तो सर मशीन लर्निंग के सारे ऑब्जेक्टिव ये फुलफिल हो जाते हैं इससे? 100%। ये आप इसको जब एक्सप्लोर करोगे तो मशीन लर्निंग के मैक्सिमम मॉडल्स इसमें अप्लाई हो जाते हैं। Okay. Okay, sir. Thank you for this wonderful lecture.